شمالی کشمیر کے ہندواڑہ کی قدیم جامع مسجد میں فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 عام شہری زخمی۔ معاملے پر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کیا ٹویٹ۔ نماز کی نگرانی کو بتایا مذہبی معاملات میں مداخلت۔ کیا کشمیری نئے کشمیر کے بھرم کی بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں؟ جموں کشمیر کے 250 سے زائد سیاسی کارکن اور لیڈران نئی دلی میں عام آدمی پارٹی میں ہو سکتے ہیں کل دوپہر میں شامل ہونے والوں میں سری نگر میونسپل کارپوریشن کے 20 سے زائد کارپوریٹر بھی ہوئے روانہ۔ پینتھرز پارٹی کے ہریش دیو سنگھ کی بھی ہوئی آپ قیادت سے ملاقات۔ کل اروند کیجریوال جموں کشمیر کے 250 کے قریب سیاسی کارکنوں کا کریں گے استقبال۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی نئی دلی میں ہوئی طلبی۔ نیشنل کانفرنس نے عمر عبداللہ کی دلی طلبی کو سیاست سے کیا تعبیر۔ کہا عمر عبداللہ نے کوئی جرم نہیں کیا، ای ڈی کو مکمل تعاون دینے کے لیے تیار۔ اور جموں کشمیر میں بڑھتی مہنگائی پر کانگریس پارٹی کا جموں اور سری نگر میں بیک وقت احتجاجی مظاہروں کا پروگرام۔ غلام احمد میر کانگریس پارٹی کے پریزیڈنٹ نے جموں میں کی قیادت، جبکہ گلزار وانی نے سری نگر میں کی قیادت۔ میر کے مطابق 5 ریاستوں میں ہوئے انتخابات کے دوران مہنگائی رک گئی تھی، اچانک سے کیسے بڑھنے لگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گراؤنڈ رپورٹ کے آج کے شمارے میں اپنے میزبان تجمل اسلام کا سلام پہنچے۔ آپ جہاں بھی ہیں خوش و خرم ہوں گے اور رمضان کے ان متبرک ایام میں دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھ رہے ہوں گے۔ شروعات کرتے ہیں شمالی کشمیر کے ہندواڑہ علاقے سے ابھی تک کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ۔ ناظرین، شمالی کشمیر کے ہندواڑہ میں قدیم مسجد کے اندر فائرنگ کے واقعے کے بعد فوج نے ویڈیوگرافی ریلیز کر دی، اور جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تحقیقات جو ہے اس میں آگے کس سمت کی اور جائے گی، یہ بتانا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق ویڈیوگرافی فوج کی طرف سے جاری کی گئی۔ لوگوں نے اعتراضات اٹھاتے ہوئے اس دوران طرفین کے درمیان تیز کلامی تلخ کلامی ہوئی، اور جس کے بعد فوج نے فائرنگ کی۔ 2 نمازی زخمی ہوئے۔ علاقے میں بعد ازاں نماز میں بھی حالات پرتناؤ رہے، جس کی وجہ سے یہاں پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ اطلاعات کے مطابق شمالی کشمیر کے ہندواڑہ علاقے میں آج نماز ظہر کے بعد اچانک فائرنگ کے واقعے میں 2 عام شہری زخمی ہونے کے بعد مقامی لوگوں نے زوردار احتجاج کیا۔ پولیس کو طاقت کا استعمال کرنا پڑا۔ سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس متعلقہ کنسرن پولیس آفیسر از خود جائے واردات پہ موجود رہے اور طاقت کا استعمال کرنے کے بعد اس بھیڑ کو منتشر کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس ضمن میں پولیس نے باقاعدہ طور پر تحقیقات شروع کر دی۔ ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سپریمو سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اپنا ٹویٹ جاری کرتے ہوئے شمالی کشمیر کے ہندواڑہ کے آج کے واقعے کو اپنے ٹویٹ کے ذریعے کچھ اس طرح سے تحریر کیا۔ محبوبہ مفتی لکھتی ہیں، ہندواڑہ میں آج کے واقعے کی وہ مذمت کرتی ہیں جس میں فوج کے ساتھ جھڑپ میں 2 شہری زخمی ہو گئے۔ نماز پڑھنے کی ایک سادہ عمل کی غیر ضروری نگرانی کے ذریعے مذہبی معاملات میں مرکزی سرکار کی مداخلت یہ ظاہر کرتی ہے کہ کشمیری نئے کشمیر کی بھرم کی بہت زیادہ قیمت ادا کر رہی ہے۔ پی ڈی پی سپریمو سابق وزیر اعلیٰ نے ہندواڑہ میں فوج کی طرف سے فائرنگ میں عام شہریوں اور نماز کے نزدیک احتجاجی مظاہروں پر اپنا ٹویٹ جاری کرتے ہوئے کہا، کیا یہ نہیں نیا کشمیر ہے اور نئے کشمیر کا بھرم ہے جس کی آپ قیمت ادا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہندواڑہ واقعے کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کی ایک سادہ عمل کی غیر ضروری نگرانی کے ذریعے مذہبی معاملات میں مرکزی سرکار کی مداخلت یہ ظاہر کر رہی ہے کہ کشمیری نئے کشمیر کے بھرم کی بہت زیادہ قیمت ادا کر رہی ہے۔ اور ناظرین، جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کب ہوں گے، کس نوعیت کے ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے؟ عموماً ان مہینوں میں جب 5 سے 6 مہینے اسمبلی انتخابات میں رہتے تھے،
नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के मद मुकाबिल या रिवायती पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बड़ी कौमी पार्टियां जम्मू कश्मीर में किस्मत आजमाई के लिए आया करती थी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस और कई ऐसी पार्टियां भी हैं जिनका जम्मू कश्मीर में उन्हीं 2-3 महीनों में तारुफ मुकम्मल हो जाता था। हालांकि नताइज अखज़ करना इतना आसान जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्योंकि कुछ कौमी पार्टियों के अलावा, जिनमें कांग्रेस, सीपीआईएम के अलावा कोई दूसरी बड़ी पार्टी अभी तक कश्मीर से, खुसूसन बल्कि जम्मू से, हालांकि चंद पार्टियों को कामयाबियां वक्तन फ़ौक्तन मिली, जिनमें पैंथर्स पार्टी हैं जिन्हें जम्मू में किसी वक्त में कामयाबी मिली, और उसके बाद कई एक पार्टियां या बीजेपी, हालांकि कश्मीर में अभी तक बीजेपी अपना पॉलिटिकल अकाउंट खोलने में कामयाब भी नहीं हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में अब असेंबली इंतखाबात किस नवियत के होंगे, क्योंकि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस बज़िद है कि वो इकट्ठे इंतखाबात में जाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस वक्त जम्मू कश्मीर की असेंबली बननी जा रही हो, तो उमर अब्दुल्ला ने 12 कहा, महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर की अगली असेंबली यानी आने वाली जो असेंबली होगी वो कोई आम असेंबली नहीं होगी, जिसमें वो 35 से 370 के मामले पर भी अपने मामला उठाएंगे। और उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि कुछ पार्टियां बी पार्टियों के नाम से जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करेगी, ताकि उन्हें वोट हासिल होने के बाद जम्मू कश्मीर 35 से 370 को ख़त्म करने की साजिश होगी। उन्होंने लोगों को मुतनब्बिह किया कि आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर पार्टियां जो पीएचडी का हिस्सा है उनके हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करें। लेकिन ये तो पुरानी बातें हुई। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आपको मिली कामयाबी के बाद, जिस वक्त पंजाब, नई दिल्ली में मिली कामयाबी के बाद, अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के काफिले ने जम्मू कश्मीर में अपने सफ़र का और सियासी इनिंग का बाकायदा आगाज़ कल 2:30 बजे नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के मरकजी दफ्तर नई दिल्ली में इंतहाई अहम बैठक होगी। इस बैठक में मुतअद्दिद सियासी शख्सियात के अलावा सियासी कारकुन भी शामिल होंगे। बड़ी खबर, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से करीबन 25 से 28 के दरमियान जो आंकड़े हमारे पास हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, वो अब लगातार नई दिल्ली पहुंचना शुरू हुए और आज तकरीबन दोपहर 5 बजे की फ्लाइट से करीबन 25 कारकुन जो है, कारपोरेटर जो है, वो नई दिल्ली रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की दिखाना इसलिए लाजमी है, इसी इदारे से 25 के करीब कॉरपोरेटर जो है वो कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों को अलविदा कहने के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तस्वीर में आपने देखा शफात गफार, जिन्होंने बटमालू ज़ियारतगाह से अपना इलेक्शन जीता था कॉरपोरेटर के तौर पर, और उसके बाद ये वो कॉरपोरेटर होंगे जो इस ग्रुप की क़यादत करेंगे। किसी वक्त में शफात ने, हालांकि कांग्रेस पार्टी से इनका ताल्लुक अभी भी है, उन्होंने चीफ विप की खिदमत भी हासिल की थी और बाकी कॉरपोरेटरों को इंटैक्ट रखने के लिए कोऑर्डिनेशन के तौर पर भी काम किया। बताया जाता, अगर ज़राए का यकीन करें, शफात गफार जिनका ताल्लुक ज़ियारत शरीफ बटमालू से है, कॉरपोरेटर हैं, उन्हीं की क़यादत में ये टीम जो है ये नई दिल्ली रवाना हो चुकी है और इस ग्रुप को हेड कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक अब्दुल रशीद शाहीन, साबिक मेंबर पार्लियामेंट जिनका ताल्लुक शुमाली कश्मीर से हैं, वो भी आने वाले दिनों में नई दिल्ली रवाना होंगे और वो भी इस काफिले का हिस्सा होगा जो कि आम आदमी पार्टी को नई दिल्ली में कल ज्वाइन करने वाले हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बड़ी अहम सियासी हमगीर शख्सियत, श्रीनगर से इनका ताल्लुक है, मुसलसल तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ राब्ते में है और हो सका या तो कल या आने वाले हफ्ते में श्रीनगर की बड़ी अहम और मुमताज़ सियासी शख्सियत अब कांग्रेस पार्टी से अलग होकर आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकती है। श्रीनगर शहर के चंद डीडीसी मेंबरान और इसके अलावा सदर ज़िला मकामात में साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, बानीपोरा ज़िला से और कई एक इलाके जिनमें गुरेज करना और पिछड़े हुए इलाके, वहाँ से भी बड़ी अहम शख्सियात जो है सियासी असर रसूख रखने वाली समाज में, वो भी आम आदमी पार्टी को कल नई दिल्ली में 2:30 बजे के करीब शामिल हो सकते हैं। इस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने और इन तमाम सियासी शख्सियात का जम्मू कश्मीर में अपना सियासी किस्मत किस तरह से आगे चलेगा, क्या आने वाले दिनों में हम ये देख पाएँ कि इस फैसले की रूह से जब आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अपना सियासी करियर का आगाज़ करना है तो किस नवियत के इक़दाम होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीएचडी का अगर हिस्सा होते हैं तो उसके मद्दे मुकाबले में, चूंकि कांग्रेस पार्टी को आगे कुआं पीछे खाई
न वो PhD के साथ रह पाए, न वो PhD की मुखालफत कर सके। क्या जम्मू कश्मीर में भी पंजाब और नई दिल्ली के तर्ज पर आम आदमी पार्टी जम्मू और कश्मीर में अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पूरी तरह से खदेड़ने में कामयाब होगी या उन्हें रिप्लेस करने में कामयाब हो जाएगी? ये बड़ी बात है। लेकिन आइंदा कुछ दिनों में, क्योंकि साउथ कश्मीर में कल ही जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नवाब ने वही दफ्तर लिया जो किसी वक्त में जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में हसीब द्राबू के पास हुआ करता था, जब वो जम्मू कश्मीर में वजीर थे और कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उन्हें वहां सुनने आते थे और मसाइल वहां पर देखे जाते थे। इस बीच में बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी ने हरीश देव सिंह, मनकोटिया और इसके अलावा बड़ी अहम शख्सियत है जिन्हें आम आदमी पार्टी का टिकट आइंदा इलेक्शन में मिल सकता है ज्वाइनिंग के बाद। लेकिन एक अहम खबर और भी है कि आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए मरकज ने या अरविंद केजरीवाल की टीम ने फैसला किया कि साबिक सियासी शख्सियात का इलेक्शन टिकट मिलना तकरीबन नामुमकिन है। नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा जिनका समाज में क्रेडिबिलिटी यानी उनकी साख, स्टेटस यानी उनका कद और उसके बाद कैरेक्टर यानी उनका समाज में उठना बैठना कितना बेहतर रहा है। आम आदमी पार्टी इसी मौक़िफ़ पर, इसी नस्बुल ऐन पर आगे बढ़ेगी और आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में कौन सा इलेक्शन मैनिफेस्टो लेकर आएगी, मैं आपको तफसील में बता दूं कि आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्हें सियासत करनी नहीं आती है, वो सियासी तकरीरों में ज़्यादा बेहतर मौसर नहीं साबित हो सकते हैं। लेकिन सियासी तकरीरों में आम आदमी पार्टी जो है अब वो कहती है, दावा करती है कि वो अस्पताल बनाने में माहिर है, वो कहती है कि वो तालीम को आम करने में माहिर है, वो रोड्स बनाने में माहिर है, वो सैनिटेशन और इंजीनियरिंग को बेहतर करते हैं। अब देखने वाली बात होगी जम्मू कश्मीर में साबिक मिस इंडिया इंटरनेशनल नुसरत ने भी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। कुछ दिन पहले इन्होंने खवातीन विंग का एक इजलास भी राजबाग में तलब किया था और कुछ और अहम खवातीन जो है जिनका ताल्लुक शहर श्रीनगर से और दीगर अजला से है, आइंदा कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों से अलग होकर आम आदमी पार्टी में सफर को आगे बढ़ाएंगे। और नाज़रीन, एक तरफ आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में सियासी इनिंग का आगाज करने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कौमी तहकीकाती ब्यूरो NIA ने आज भी अपनी छापामारी का सिलसिला टंगमर्ग, बारामुल्ला और श्रीनगर के कई इलाकों में जारी रही। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कई एक इलाकों से आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों के लिए जहां सियासी मामलात भी बन रहे हैं, लेकिन NIA की तरफ से भी अब कई एक जगहों पर छापामारी का सिलसिला तेज कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बारामुल्ला और श्रीनगर में आज की छापामारी के दौरान ये अभी तक मालूम न हो सका कि जम्मू कश्मीर में आज NIA की छापामारी के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उसको किस नवियत से लिया जाएगा। न गिरफ्तारी के हवाले से कोई खबर हुई और न ही डिजिटल आलात को जब्त करने के हवाले से कोई भी अभी तक इत्तलात हम तक पहुंच पाई है। टंगमर्ग और श्रीनगर में आज NIA की तरफ से छापामारी का सिलसिला कई इलाकों में जारी रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर, साबिक वजीर आला, साबिक वजीर ममलिकत मरकज में रह चुके उमर अब्दुल्ला को ED ने नई दिल्ली में छापामारी के दौरान तलब किया और उसके बाद पूछताछ भी की गई। इत्तलात के अब्दुल्ला को अब ED ने तलब किया था। बताया जाता कि तहकीकात कई घंटों तक चली और नई दिल्ली में साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला से ED ने कई घंटों तक पूछताछ की और फॉर्मली उन्हें दिल्ली ऑफिस भी तलब किया पूछताछ के लिए। और इसी बीच में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्वीट आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने ट्वीट में कहा, उमर अब्दुल्ला को रस्मी तौर पर दिल्ली बुलाया गया था इन बुनियादों पर कि तहकीकात के लिए उसकी हाजिरी इंतहाई अहम है। अगरचे ये मशक सियासी नवियत की है ताहम वो ताउन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनकी तरफ से कोई गलत काम नहीं हो चुका है। जबकि सोशल मीडिया की इंचार्ज और नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की बड़ी अहम सियासी रहनुमा सारा हयात शाह ने भी अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए उमर अब्दुल्ला को ED की तरफ से तलब किए जाने पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सारा हयात शाह ने कहा, बड़ा अफसोस होता है कि पहले जब इलेक्शन होते थे या पहले जब सियासत होती थी
تو یہ ذاتیات پہ نہیں ہوتی تھی، میرٹ پہ ہوتی تھی. لوگوں کو جس کے لیے لگتا تھا ووٹ کرنا چاہیے وہ کرتے تھے، لوگوں کو جس کے لیے لگتا تھا ہمیں اپنا مت دینا چاہیے وہ دیتے تھے اپنا سپورٹ. آج اب ایجنسیاں ڈیسائیڈ کرتی ہیں، چاہے انسان کتنا ہی کلین ہو، اس کے پیچھے کس طرح بھاگنا ہے. ایک تنظیم جو ہے ملک میں بنی ہوئی جو ان کو سپورٹ کرتی ہے، کہتی ہے اب آپ جی اس بندے کے پیچھے جائیے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کشمیری جو ہے ان کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا جائے. آپ دیکھتے ہیں روز روز یہاں نئی تنظیمیں بنتی ہیں، وہ بھی یہی کراتے ہیں، نئی تنظیمیں روز بناتے ہیں. اور تاکہ ہمارا جو ووٹر ہے، اگر ہمارے 10 ووٹر ہیں، 5 لوگوں کو یہ ووٹ ملے. یہ فریکچرڈ رہے مینڈیٹ. لیکن اگر آپ باقی خطوں میں دیکھیں گے وہ یہ اس طرح نہیں کرتے ہیں، اس طرح کا پیٹرن استعمال نہیں کیا جاتا ہے. عمر صاحب کے خلاف آج تک کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی ہے، پچھلے 25 سال میں جتنا سمے ان کو سیاست میں ہو گیا ہے. اتنے افسوس کی بات ہے کہ ایسے انسان کے خلاف انگلی اٹھانا، کوئی کوشچننگ کے لیے بلانا، حالانکہ رمضان کا مہینہ تھا. جموں کشمیر، ملک بھر اور دنیا کے حالات و واقعات پر مبنی پروگرام گراؤنڈ رپورٹ آپ اس وقت براہ راست سری نگر اسٹوڈیو سے اپنے میزبان تجمل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. انسٹا، یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے عالمی سطح پر آپ اس پروگرام کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، اب جموں کشمیر میں مہنگائی کے حوالے سے کانگریس پارٹی نے جموں اور سری نگر میں آج بیک وقت احتجاجی مظاہروں کا پروگرام دیا. غلام احمد میر کی قیادت میں جموں میں کانگریس پارٹی کا احتجاجی قافلہ جو ہی آگے بڑھنے لگا تو احتجاج کے دوران غلام احمد میر، رمن بلا اور کانگریس پارٹی کے سینئر سیاسی رہنما موجود رہے، جبکہ اس موقع پر مہنگائی کے خلاف اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت اور سیاسی رہنماؤں کے خلاف جم کر نعرہ بازی کی گئی. ناظرین، جمہوریت اور سیاست میں یہ بڑا اہم مقام ہے کہ ایک وقت میں کانگریس نے ملک کو تقریباً 3-4 دہائیوں تک چلایا اور شاید اس طرح کی سیاست بہت کم بار کی ہوگی. اور اقتدار سے اختلاف میں جانا بھی ایک سیاسی طرز عمل ہے. کل تلک کے وزیر رہ چکے غلام احمد میر کو پولیس اپنے ساتھ لے جا رہی ہے. یہ بھی جمہوری طرز عمل ہے. اور غلام احمد میر نے گرفتاری سے قبل احتیاطی طور پر گرفتار کیا گیا. رمن بلا اور سینئر رہنماؤں کے ہمراہ انہوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو کہا کہ ملک کی 5 ریاستوں میں جب تلک انتخابات ہوئے، مہنگائی یا گیس سلنڈر کی قیمتوں یا باقی اشیائی خوردنی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا. ایک طرف انتخابات ختم ہوئے، دوسری طرف پرائم منسٹر اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا تحفہ ملک کے تمام لوگوں کو ملا. اتنی مہنگائی لگاتار، ہر چیز کو آپ یوکرین اور روس کے جنگ کے ساتھ جوڑنے کی غلط فہمی نہ کریں. غلام احمد میر نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت میں کیا کچھ کہا، اس کے بعد سری نگر چلتے ہیں جہاں پر کانگریس پارٹی نے احتجاج کیا. پورے دیش میں کانگریس پارٹی کی طرف سے جو مرکزی سرکار کی مرکزی سرکار کی جن ویرودھی پالیسیاں ہیں، اور خصوصاً جو پچھلے 15 دن سے ڈیزل، پیٹرول اور گیس کا جس طرح سے انہوں نے ٹیکسز بڑھا کے قیمتیں ہائی کر دی، جس سے ایک بار پھر ہندوستان کی جنتا کو، غریب جنتا کو کمر توڑ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ بھاجپا سرکار کتنی دوگلی سرکار ہے کہ جب چناؤ ہو. ادھر کانگریس پارٹی نے سیام کے دنوں میں ہی، روزوں کے مہینے میں ہی مہنگائی کو دیکھنے کے بعد آج شری نگر میں احتجاج کیا اور کئی سیاسی رہنماؤں نے اپنے ہاتھوں میں گیس سلنڈر تک اٹھا رکھے تھے. عرفان نقیب کی کانگریس میں واپسی ہوئی ہے اور کچھ وقت انہوں نے اپنی پارٹی میں گزارا. آج کانگریس پارٹی میں آ کر انہوں نے پہلے ہی دن گیس سلنڈر کو جو ہے اس کو انہوں نے عوامی نمائندوں کے سامنے رکھا، ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے سامنے رکھا. اس موقع پر کانگریس کے سیاسی رہنماؤں کے مطابق اشیائی خوردنی کی قیمتیں، گیس اور اس کے بعد ڈیزل، پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان کو چھونے جا رہی ہے. متعلقہ ایس ایچ او اسحاق احمد اور پولیس ٹیم فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی اور اس احتجاج کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی. اس موقع پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے سابق ایم ایل اے گلزار احمد وانی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مہنگائی کس طرف جا رہی ہے اور عوام کو کس طرف لے کے جا رہی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی نہ سننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی مہنگائی کو کم کرنے کے موڈ میں ہے. دراصل بات یہ ہے کہ پورے ملک میں
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त चल रही है, जो उन्होंने महंगाई को कंट्रोल में नहीं रखा है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनके दाम बढ़ रहे हैं, डीजल और पेट्रोल बहुत आसमान छू रहा है, और ख़ासकर हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं उसका तो आसमान पर उसका कीमत पहुंच गया है, उसका निर्यात पहुंच गया है। लिहाजा पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुल्क जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे की नौबत क्यों आन पड़ी, तस्वीर में आप देख पाएंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सैयद अल्ताफ बुखारी के सरपरस्ती में जम्मू और बाकी इलाकों में जो है मुख्तलिफ मामलात को लेकर, ये मनजीत सिंह है जो साबिक वजीर रह चुके हैं, आज अपनी पार्टी में वो मौजूद हैं और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे की क़ियादत की। टूल प्लाजा और बाकी परेशानियों को लेकर अवाम को जो मुश्किलात दरपेश है, उन्होंने कहा कि सरकार को फौरी तौर पर इन मामलात को देखना चाहिए, वरना जिस वक्त अवाम को लगेगा कि सरकार अवामी तवक्कुआत पर खड़ी नहीं उतरती है, तो शायद उस वक्त वापस मोड़ना कदर मुख्तलिफ होगा। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका वेलकम करेंगे, लेकिन ये सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हमको सोचना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में भी अगर हमको ये आवाज़ उठानी पड़ी तो हम आवाज़ वहाँ पहुँचाएंगे। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ही हमारी बात वहाँ पहुँचाए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात वहाँ पहुँचाए। हम नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में हम कोई विघ्न डालें। देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहेंगे कि हमारी आवाज़। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने आज एक तकरीब के दौरान बाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को कहा कि आज का दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 के तौर पर और आवर प्लेनेट आवर हार्ट और बाकी मौजू पर उन्होंने किस तरह से बातचीत की। उन्होंने कहा कि शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करना होगा और जिस वक्त सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाएगा तो उसके बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। 7 अप्रैल को हर सतह पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है और उन्होंने कहा कि न सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा बल्कि सफाई सुथराई का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए। डे है 17 अप्रैल को ये हम मना रहे हैं, थ्रू आउट यूटी मना रहे हैं। हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या डिविजनल लेवल पे ये दिन, आज का जो थीम है इस दिन का आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, तो इसमें यही माना जाता है कि आज हमने लोगों को यही अपील करनी है कि आपने सेहत का ख्याल रखें, साफ़ सुथराई का ख्याल रखें, और इससे अच्छा चीज़ कोई नहीं हो सकता जो एक प्लांट और प्लेनेट और हेल्थ, यानी जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर की तरफ से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों ने कहा आवर प्लेनेट आवर हेल्थ एक तरह का प्रोग्राम है, लेकिन दूसरा मामला जो इस वक्त है गोल्डन कार्ड्स को लेकर बड़ी परेशानियां हैं। कई गैर सरकारी और सरकारी अस्पताल इसको ऑनर नहीं करते हैं। क्या उन्होंने किसी ख़ास शख्स से इस बारे में बातचीत भी की? डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर के मुताबिक आयुष्मान भारत के CEO से उन्होंने रब्ता कायम किया और ये मामला आहिस्ता आहिस्ता वक्फे से दुरुस्त करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। देखिए, गोल्डन कार्ड का जो ये मसला है, 1-2 शिकायतें मुझे भी आई है। मैंने आयुष्मान भारत का जो CEO है, जो इसका मतलब चीफ है, उससे मैंने बात करी है। जहाँ किसी को ये शिकायत होगी हम इसमें देख लेंगे और इक़दाम करेंगे। नया वेरिएंट अब साउथ इंडिया में पैदा हो गया, अभी यहाँ कुछ नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ठीक है, सेफ है। लेकिन नाज़रीन, अब स्ट्रीट वेंडर्स यानी जो अफराद जिनका ताल्लुक शहर श्रीनगर से है, बटमालू में आकर अपना रोज़गार कमाने की कोशिश करते थे और उन्हें कई दिनों से बड़ी परेशानियों और मसाइल का सामना है और आज इन्होंने इस ज़मन में अपना एहतजाज भी दर्ज किया। बटमालू के स्ट्रीट वेंडर्स ने अपना एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने कहा कि जो मुश्किलात उनके हैं उन्हें हल करने के बजाय लगातार मुख्तलिफ तबकों की तरफ से, मुख्तलिफ एजेंसीज़ की तरफ से उनके रोज़गार में मुदाखलत करने की कोशिश की जाती है। वाज़ह रहे कि स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर ट्रैफिक पुलिस, एग्जीक्यूटिव पुलिस, सोशल पुलिस, कम्युनिटी पुलिसिंग यही कहती है कि जो पटरियाँ वगैरह हैं वो आवाम को चलने फिरने के लिए है और किसी भी कीमत पर इस तर्ज अमल को तब्दील करना ही होगा।
मुझे 50-55 साल यहाँ पे हो गया, करीबन 70 साल मेरी उम्र है। यहाँ से ये जी मैं चिकन का काम करता हूँ, चिकन का। मेरे पास पिछले 30 साल से म्यूनिसिपैलिटी में फाइल है। एक अफसर आता है, चेंज हो जाता है, फिर दूसरा। अब तो हमने जाना छोड़ दिया। ये बोलते हैं आप अड्डे में चले जाओ, वहाँ तक यहाँ तक हाँ हम जाएंगे, मगर जहाँ पे मतलब अच्छी तरीके से, मगर अब तो ईद तक हमें मोहलत दे, हम भी बच्चे हुआ, हम भी। नाज़रीन, हरिपोरा इमाम साहब शोपियन में आज मिलिटेंट और फोर्सेस के बीच में कल शाम को 11 बजे फायरिंग दो तरफा हुई और उसके बाद आज अलग सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी आर्मी ने अपना ऑपरेशन मुकम्मल किया। बताया जाता है कि मिलिटेंट इस एरिया से फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। नाज़रीन के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। अल्लाह हाफिज।